Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I have given you a worksheet for matter in our surroundings. Now I will discuss the answer. Now the first question is why rate of diffusion is faster in gaseous state? कि gaseous state में rate of diffusion faster क्यों होता है? What is diffusion? That is movement of solute particles from higher concentration to lower concentration. Now in gaseous state the particle space is more and there is less intermolecular force of attraction. That's why in gaseous state we have more rate of diffusion. Now the second question is give reason for the existence of the three states of matter. Now तीनों states of matter क्यों exist करते हैं? The first is there is intermolecular force of attraction, space between them, and next is kinetic energy. If we increase the kinetic energy, then there is conversion of states will take place. If we lower the kinetic energy, then also there will be a conversion of state. So that's why the matter exists in three states. Now the next question is a substance has no mass. एक सब्सटेंस है जिसके पास कोई मास नहीं है, क्या हम उसे मैटर कंसिडर करेंगे? आप बताइए मैटर क्या था? दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, इट इज़ नोन एज मैटर. इफ इट डज नॉट हैव mass, that means it is not considered as matter. Now next question is a diver is able to cut through water in a swimming pool. एक आपका डाइवर है, डाइवर इज जो स्विमिंग करता है उसे डाइवर बोलते हैं. नाउ इज एबल टू कट थ्रू वाटर मीन्स कि वो ईजिली वाटर में स्विम कर पा रहा है. जब वो ईजिली वाटर में स्विम कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो आपको यहाँ पे दिख रही है? नाउ व्हेन वी कंपेयर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, what we get, solids are tightly packed and the intermolecular force of attraction is very much, but intermolecular space is very less. That's why you cannot walk in solids. Now but when we move to liquids, there is less intermolecular force of attraction as compared to solids and a little bit more intermolecular space between them. मीन्स उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. दैट्स वाई अ डाइवर इज एबल टू पुश द वाटर. when it push the water means he can easily move the hands because of the space between the particles of liquid. So it means that they can easily flow. Okay, now particles of water are held together by force of attraction. particles of water क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहाँ पे. इट इज़ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना कट करना है डाइवर को, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. दैट्स वाई दे कैन ईजिली कट इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट शुड बी कॉल्ड अ वेपर. आप किस सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में वेपर बोलोगे? दैट इज़ योर सल्फर. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या था? that is boiling, that is heating of the any substance at any temperature. Fine. So that is known as your evaporation. The phenomenon of change of liquid into vapor. लिक्विड को चेंज करो आप कौन से स्टेट में? वेपर स्टेट में, किसी भी टेम्परेचर पे. बिकॉज बॉइलिंग तो क्या था कि बॉइलिंग में वी टेक अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर लेते हैं, इट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. बट इन इवेपोरेशन वी डू नॉट कंसीडर एनी फिक्स टेम्परेचर, इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर. नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए सरफेस फिनोमिना. इसको हम सरफेस फिनोमिना क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस. सो ग्रेटर द सरफेस ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन. सो दैट मीन्स इवेपोरेशन हमेशा सरफेस पे होता है. सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? दैट इज़ जब आप वाटर बॉडीज़ को देखते हैं तो सिर्फ सरफेस वाटर हीटअप हुआ हुआ होता है, नॉट एट ऑल द बॉटम वाटर. पूरा वाटर जो बॉटम में है वो हीटअप नहीं हुआ हुआ था, बट सरफेस का वाटर ही हीटअप हुआ हुआ. दैट मीन्स कि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे हो रही है, ना कि पूरी होल लिक्विड में हो रही है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सरफेस फिनोमिना. Evaporation is called as surface phenomena because liquid evaporates from the surface, not from the bottom. Next question. Why do we see water droplets on the surface of a glass containing ice cold water? हम वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखता हमें सरफेस पे ग्लास के?
जिसके पास आइस कोल्ड वाटर होता है, मीन्स आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आइस कोल्ड वाटर लिया, आइस कोल्ड वाटर लेने के बाद आपको वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं कुछ टाइम के बाद। क्यों दिखते हैं? बिकॉज आपको पता है कि जब वाटर वेपर्स एयर से कांटेक्ट में आता है, दे विल लूज देयर हीट एनर्जी। सो व्हेन दे लूज देयर हीट एनर्जी, दे विल condense form and it will gives you water droplets. Now at what temperature does solid ice and liquid water coexist together? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड आइस और लिक्विड दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं? दैट इज योर 0 डिग्री सेल्सियस. वी हैव स्टडीड that in water at 0 degree Celsius is liquid, but ice is also exists over there because it takes a latent heat of web fusion. That means water exists in liquid state as well as in solid state at 0 degree Celsius. Now the next question is, what happens when you open a bottle of a perfume? जब आप एक परफ्यूम की बॉटल ओपन अप करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे? एक्चुअली में परफ्यूम क्या है? सॉल्यूट है. नाउ व्हाट हैपन्स दैट when you open the bottle of a perfume, it will diffuse in air. So basically diffusion will take place, and the fragrance of perfume can be felt in all the room. Now name the state of matter in which layers of particles can slip and slide over one another easily. कि जहाँ पे particles एक दूसरे के ऊपर slide कर जाए, that is a liquid. Now particles just move around randomly because of very weak force of attraction. पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज योर गैसेस. हमने पढ़ा है सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं बिकॉज दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड्स में थोड़ा लूजली बिकॉज दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड. बट व्हेन वी कंपेयर अबाउट गैसेस, they have least intermolecular force of attraction and greater the space. So that's why it is your gases. Now next is question number 11. A rubber band can change its shape on stretching. आपकी रबर बैंड एक शेप चेंज कर लेती है स्ट्रेच करने पर. क्या आप उसे सॉलिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है. रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स. आपने फोर्स लगाई है, दैट्स वाई वहाँ पे शेप चेंज हो रही है. बट वेन यू लूज द शेप, जब आप शेप को लूज करेंगे तभी वहाँ पे उसकी ओरिजिनल शेप वापस आ जाएगी. दैट्स वाई इट इज नोन एज सॉलिड. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ वेपर. गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? इट इज स्टेबल एज कम्पेयर टू वेपर. गैस आपकी स्टेबल होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. बट वेपर अनस्टेबल होती है बिकॉज जब आप वेपर्स को कूल डाउन करेंगे तो अपनी स्टेट चेंज करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर वेपर्स लिए, वाटर वेपर्स के अंदर हीट एनर्जी है. सो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, व्हाट विल हैपन? दे विल लूज आउट द हीट. So when they lose out the heat, they will convert into water droplets. So that means vapors are unstable. That's why they are converting their state. So that means gases are stable and vapors are unstable. Example, water vapor, and gas is oxygen and hydrogen. Now next question is, the molecules of water have more energy as compared to the molecules of ice. कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस सेम टेम्परेचर पे. क्यों? बिकॉज वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करे ताकि वो स्टेट चेंज कर सके. नाउ वाटर हैज़ मोर एनर्जी देन आइस एट सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स इन वाटर हैव एब्जॉर्ब मोर एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल. को 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है एंड -10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल. नाउ यू नो दैट फॉर कन्वर्टिंग द सेल्सियस इंटू केल्विन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 273. सो 300 माइनस 273 वी विल गेट 27 डिग्री सेल्सियस. एंड फॉर कन्वर्टिंग केल्विन टू सेल्सियस, what we will do? We will take the temperature in Celsius plus 273. So we will add -10 plus 273. We will get 263 Kelvin. Now why it is 263? Because in integers we have studied that plus minus is minus. The next question is, a 2 ml of Dettol is added to a beaker. आपने 2 ml की डिटॉल लिया, आपने से एक बीकर में ऐड किया जिसके अंदर 500 ml का वाटर था. ओके,
स्टिर किया, अब क्या चेंज आएगा बीकर ऑफ वाटर एंड डिटॉल में? दैट इज व्हेन यू ऐड डिटॉल इन द बीकर containing water, what will happen? The smell of dettol is in whole the water, पूरे बीकर में हो जाएगी. सेकेंडली हेयर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस. क्यों? क्योंकि डिटॉल वाटर के अंदर मिक्स किया जा रहा है, सॉल्यूट मिक्स किया जा रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ डिफ्यूजन प्रोसेस. नाउ द नेम द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस हेयर. कौन सा प्रोसेस है? दैट इज डिफ्यूजन. Third part, define what is diffusion. Diffusion is the process in which the solute travels from a region of high concentration to a region of low concentration. मीन्स जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करके लो कंसनट्रेशन में ट्रैवल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. क्या क्या इफेक्ट आएगा आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन पे? अगर आप टेम्परेचर की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड की. अब आप अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. सो व्हेन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगा. एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या इफेक्ट आएगा कि अगर आपका पार्टिकल ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पे डिफ्यूजन कम होगा, पार्टिकल्स ईजिली मिक्स नहीं हो पाएंगे. अगर कम डेंस होगा तो वहाँ पे पार्टिकल्स ईजिली मिक्स हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एंड हनी बोथ आर लिक्विड. दोनों ही लिक्विड है बट वाटर ईजिली फ्लो करता है ना कि हनी. क्यों? रीजन बिंग दैट हनी इज मोर विस्कस. विस्कस इज गाढ़ा, हनी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है. मीन्स वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है. जब डेंसिटी ज़्यादा दैट मीन्स कि वहाँ पे डिफ्यूजन रेट कम होगा. एंड डिफ्यूजन कम होगा तो वो ईजिली फ्लो भी नहीं कर पाएगा. Now water and honey both are liquid but water easily flow कर रहा है. Honey is viscous in nature. That means the honey has more intermolecular force of attraction as compared to water. So that means honey cannot flow easily as compared to water. Now the next question is give reason for the following. When sugar crystal dissolves in water, जब आप sugar crystal को dissolve कर रहे हैं water के अंदर, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज. आपको वाटर का लेवल राइज नहीं हो रहा. क्यों? बिकॉज शुगर पार्टिकल्स आर सॉलिड इन नेचर एंड वाटर हैज स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो द शुगर पार्टिकल विल गेट फिट इन टू द वाटर स्पेस एंड therefore there is no increase in the shape in the volume of the water. Particles of sugar occupies the space present between the particles of water. यही मैं आपको बोल दूँ कि जब आप शुगर पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से आपका शुगर पार्टिकल उन स्पेस के बीच में जाके फिट हो गया है. और डॉक्टर्स एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लोथ ऑन द फोरहेड ऑफ अ पर्सन. अब डॉक्टर्स कहते हैं कि जब अगर आपको फीवर हो रहा है तो आपको क्लोथ रखना चाहिए, गीला कपड़ा रखना चाहिए. क्यों रखना चाहिए? रीजन बिंग दैट कि जो आपकी बॉडी की लेटेंट हीट है, तो आपकी बॉडी की हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट होगा. एंड जब वो कन्वर्ट होगा तो आपकी बॉडी की हीट सारी इवेपोरेट हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी. एंड वेपराइज होने तो क्या होगा? आपका बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा. द एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी इज टेकन बाय लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज. डॉग्स जनरली हैंग आउट देयर टंग इन समर्स. डॉग्स टंग अपनी जीभ बाहर निकालते समर्स में. क्यों? बिकॉज दे हेल्प द सलाइवा हेल्प्स इन इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश टुक 2 बीकर्स ए एंड बी. रमेश ने 2 बीकर्स लिए हैं ए एंड बी, जिनके अंदर एक में ए में हॉट वाटर है एंड बी में कोल्ड वाटर है. नाउ ही ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. एक उसने दोनों में ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए. नाउ उसने बीकर्स को अनडिस्टर्ब रखा. आफ्टर सम टाइम व्हाट डिड ही ऑब्जर्व. वो क्या ऑब्जर्व करेगा? दैट यू नो दैट इन हॉट वाटर द टेम्परेचर इज मोर. सो व्हेन देयर इज मोर टेम्परेचर देयर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हाई. So when the rate of diffusion will be high, the copper sulfate crystals will dissolve faster. Now next, CO2 is a gas. CO2 आपके एक गैस है. कोई भी 2 प्रॉपर्टीज बताने की वो गैस है. फर्स्ट, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है. सेकेंड, दे हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. नाउ हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस. आप एक गैस को कैसे लिक्विफाई करेंगे? दैट इज़ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. आप प्रेशर इंक्रीज करें और टेम्परेचर रिड्यूस करें, so you can liquefy a gas. Now solid CO2 is also known as dry ice.
क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेज बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. नाउ मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे. नाउ इट इज़ अ हॉट समर डे. प्रियांशी एंड अली आर वियरिंग कॉटन एंड नायलन क्लॉथ. प्रियांशी ने कॉटन क्लॉथ पहने हैं एंड अली ने नायलन क्लॉथ पहने हैं. कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है एंड क्यों? यू नो दैट कॉटन क्या करेगा? इवेपोरेशन में हेल्प करेगा. सो कॉटन विल बी बेटर हेल्पफुल इन इवेपोरेटिंग द स्वेट and cooling the body as compared to nylon cloths. Now why we are able to sip a hot tea or milk faster from a saucer? आप saucer से बहुत easily sip कर सकते हैं, कूल हो जाते चाय जल्दी. क्यों? बिकॉज वहाँ पे surface area ज़्यादा है and we know when there is a greater surface area evaporation will be faster. So that's why cooling will done easily and faster it. That's why we can easily drink the we can easily sip hot tea from a saucer than a cup. That's all for today. Thank you.